Okay. Got it. Now, can somebody tell me what is health? To be physical and mentally happy, like healthy. Yes. Yes. A well-being of a person, physical, mental, emotional well-being of a person is health. अभी आप ये who wants to read today? Who's going to read I today? had network issues, otherwise I would have read. Okay. Anybody else who Okay, wants I to will read. volunteer? You want to read, Bhabhi? हाँ, I read. Okay. अभी ये हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो सामने पिक्चर है देखिए, there is a doctor's bag is there, there's a glass of water, apple, stethoscope and a diary. What does this say? This depicts कि हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो जिसके कारण हमने डॉक्टर को बुलाया है, या डॉक्टर का चेम्बर का सीन भी हो सकता है ये, राइट? बट देन यहाँ एक एप्पल है. दिस सेज एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम एप्पल की जगह ग्रैटिट्यूड रखेंगे ना, तो ग्रैटिट्यूड डेली कीप्स अस वेरी वेरी हेल्दी. ओके, लेट्स स्टार्ट. I will mute everybody now, huh? Mute all. खाली भाभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. Yeah, unmuted. Should I Yes. start? Yes, now you can start. Okay. Day 4, magical health. The greatest health is, the greatest wealth is health. Didi, can I read from my book? Actually अगर आप अपने बुक से पढ़ोगे ना, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ. That's okay, not an issue. Is it okay now? Yeah, perfect. Okay. The greatest wealth is health. Virgil, 70 BC to 19 BC. Roman poet. Health is the most precious thing in life, and yet, more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us without a health, we have nothing. Please continue. There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you're not well, all you want is to feel better and nothing else matters other than having your health back again. Yes, यहाँ वर्जिल बोल रहे हैं the greatest wealth is health. ये तो हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, पहला सुख निरोगी काया. सब बड़े सब ऐसे ही बोलते थे ना, पहला सुख निरोगी काया. अगर हेल्थ नहीं होगा तो हम ऑफिस नहीं जा पाएंगे, ऑफिस नहीं जा पाएंगे तो रुपए कहाँ से आएंगे. हाँ, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा तो रिलेशनशिप्स कैसे फॉर्म होंगे. तो इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, टू बी सक्सेसफुल, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज to have good health, right? Health is the most precious thing in life. हाँ, obviously it is the most precious thing, लेकिन हम लोग तो कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते. सुबह से रात तक भागते रहते, ये करना है वो करना है. कभी कोई चैलेंज भी आता है तो नहीं कुछ नहीं, आराम नहीं करना है, बैठना नहीं है, बस खाली काम काम काम. It is not that कि काम करना bad है, but it is just that we are taking our health for granted. कि इसको क्या होगा, मेरा बॉडी ऐसे ही है, ठीक रहेगा. हम लोग सब ऐसे ही बोलते हैं, मेरे को क्या हुआ है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ और मेरी बॉडी एकदम ठीक है, थोड़ा सा ये और कर लेते हैं फिर रेस्ट कर लेंगे. We take our health for granted.
right? Right. Please continue. Yeah. Health is a gift of life. It is something we receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Remember, Yes, whoever has a excuse me just a yeah, second. Health is a gift of life. ये हमको भगवान की तरफ से दिया हुआ बहुत बहुत अच्छा उपहार है, और ये रोज रोज हमको देते हैं. जब हम रोज सुबह उठते हैं and we see that we are absolutely fit and fine, healthy, it is a gift from God. कि आज मेरी बॉडी एकदम ठीक है, all my body parts are functioning properly and I'm absolutely fit and healthy. That is a truly gift of God. अगर थोड़ा सा भी सर्दी लगता है ना हम लोगों को, that is the basic, कोई भी चीज का मतलब सबसे कॉमन चीज है, कॉमन कोल्ड होता है. हम कितने ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है, नाक बहने लग जाता है, कोई का बात किया हुआ नहीं सुहाता है, मेरे को अकेला छोड़ दो, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, खाना नहीं भाता है, कुछ नहीं, जस्ट वो कॉमन कोल्ड से. तो अगर हम यहाँ पे रॉन्डा बर्न बोल रहे हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं, whether we are going to the gym, we are going walking, we are eating very healthy, everything, उसके साथ whatever we are doing, उसको अगर हम टीम अप करते हैं ग्रैटिट्यूड से, along with all that we are doing, we pay gratitude for our health every day, we are going to have absolutely amazing health. Amazing. Continue. remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. Yes, this is the mantra for everything. This has to be the mantra for life कि अगर हमारे पास gratitude है और हम थैंकफुल हैं हर चीज के लिए, हम कृतज्ञ हैं हर चीज के लिए, तो हमारे पास बहुत बहुत उस चीज का होगा. वी विल हैव एन अबंडेंस ऑफ इट. हमारे पास भगवान उसका हमारे पास भरमार कर देंगे. और अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं, इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल, तो जो हमारे पास है वो भी हमसे ले लिया जाएगा. तो इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर हेल्थ, तो क्या होगा, हमारे पास बीमारी भर भर के आती रहेगी. आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पाँव में दर्द है, आज मेरे बैक में दर्द है, आज मेरे को डॉक्टर के पास इस चीज के लिए जाना है, उस चीज के लिए जाना है. तो वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर गॉड हैज गिवन अस. प्लीज कंटिन्यू. You may know of people who chose a healthy lifestyle and yet still lose their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. यस, यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है हमको कि अगर हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, अगर हम रोज थैंकफुल होते हैं हमारे करंट हेल्थ के लिए, एंड वी हैव सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर. हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ. इफ वी आर ग्रेटफुल फॉर आवर करंट हेल्थ, हम देखेंगे हमारा सिर्फ अभी का हेल्थ नहीं, हमारे आने वाला हेल्थ में भी बहुत बहुत अबंडेंस होगा. We will have so much of good health in our lives. And जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, यहाँ दाग है, वहाँ मोल है, वहाँ कुछ तिल हो गया है, वहाँ वॉट्स हो गए, सब धीरे 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 करके ना आप देखेंगे सब जाते चले जा रहे हैं. एंड यू विल, मतलब ये मैजिकली होता है. आई नो
of somebody, अभी लास्ट क्लास में किसी ने शेयर किया था, बोले कि उनके अंडर आर्म्स में ना अचानक से थोड़ा चैलेंज हो गया था, थोड़ा डिस्कलरेशन हो गया था। कई बार हो जाता है ना पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन। तो बोले हम जहाँ रहते थे वहां पे बहुत गर्म जगह है, तो आई वॉन्टेड टू वेयर स्लीवलेस क्लोथ्स एंड ऑल, एंड वो हो ही नहीं पा रहा था बिकॉज माई अंडर आर्म्स एंड माई आर्म्स हैड बिकम सो डिस्कलर्ड. So she said, I just started paying gratitude for my skin and underarm health every day. And within, I think, as far as I remember, it was 3 or 4 months. And वो बोली 2 साल का मेरा जो प्रॉब्लम था वो बहुत जल्दी चला. Just by gratitude, she said, I had tried everything. कुछ काम नहीं कर रहा था. Just with gratitude, मेरा पूरा वो इशू ठीक हो गया था. Please continue. As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and antiseptic. John Yes. Henry Jewell, 1864-1923, a Presbyterian preacher and writer. Yes. यहाँ पे जॉन हेनरी ज्यूवेट क्या बोल रहे हैं हमको? He is saying that gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. अगर हम हिंदी में बोले तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है. इसका क्या मतलब होता है कि हम जो भी दवाइयां लेते हैं, gratitude is the biggest medicine. Okay, so please continue. The degree that you are grateful for. The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase, and the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. Yes, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, that the great, हम जितना ग्रेटफुल होंगे हमारी लाइफ में मैजिक उतनी ही डिग्री से वापस आएगा. This we are reading in every chapter and this is something that we all know by now. Okay, अच्छा, जब हम बीमार होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उठने का मन नहीं करता है, खाने का मन नहीं करता है ना, हमारी एनर्जी लेवल्स लो हो जाती हैं, राइट, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. एंड जब ये सब कुछ होता है, हम खा भी नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं, तो थोड़ी देर बाद लगता है ना कि अरे बाबा कुछ मत बोलो, मेरे में सोचने की शक्ति नहीं है अभी, राइट. So everything, our mind and body, everything becomes weak when there is a challenge in our body, in our body's health. Okay, please continue. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. Yes, यहाँ पे सब बता रही हैं रोंडा बर्न की हेल्थ की एरिया में ग्रैटिट्यूड का क्या क्या फायदा होता है. हमारे बॉडी से स्ट्रेस और टेंशन, ये तो बहुत ज्यादा एकदम आजमाया हुआ है, that when you are tensed, when you are in stress, if you start paying gratitude ना, धीरे धीरे करके आपका बॉडी का जो वाइब्रेशन है, जो लेवल है, वो एकदम स्तर पे आ जाता है, एकदम you become calm. धीरे धीरे एकदम काम हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि क्या चीज की स्ट्रेस थी हमको. इट कैन बी योर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, कोई भी तरह का स्ट्रेस टेंशन हो बॉडी में, अगर आप ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करते हैं ना, मन ही मन में आप ग्रैटिट्यूड देते जाते हैं, तो योर बॉडी बिकम्स वेरी वेरी काम.
एंड यहाँ तो ये भी लिखा हुआ है कि इफ यू पे ग्रेटिट्यूड तो हमारी लाइफ 7 साल बढ़ जाती है. इससे ध्यान आया दैट देयर इज अ प्लेस इन ओकिनावा, प्लेस कॉल्ड ओकिनावा इन जापान. वहां पे पीपल आर सो हैप्पी, हेल्पफुल, काइंड हार्टेड and very very loving, and just because they are grateful for everything that they have, वहां पे average age of people is 100 years. वहां पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा concentrated, this I have written down, the highest concentration of people above 100 years of age in Okinawa. There is a style of living. There is a book called Ikigai. हाँ, इकिगाई बोल के बुक है. इकिगाई का मीनिंग होता है अ रीजन टू लिव. दिस इज अ बुक ऑल्सो, जापान में लिखी गई है. जापान का दिस इज अ वे ऑफ लिविंग, अ रीजन टू लिव. If you want, I have written down something. It is the place where your needs, desires, ambition and satisfaction meet. वो that is that state of mind जहां पे हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, whatever we want to receive and satisfaction, सब कुछ एक जगह आके मिलता है. So what is that state of mind? That is a very calm state of mind. Ikigai is a reason to live. We can make that a practice, that हमारा जीने का क्या कारण है, उसको अगर हम डीप जाके सोचेंगे तो we will find that and we will be able to live very happily. Okay, and if we actually follow that, maybe we will our country will also have people who are more than 100 years of age. Right. Okay, please continue. Yeah, you can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you're going to use gratitude's magical power for the health of your body. Yes, वो तो आपको अभी पता चल जाएगा. how healthy you are, आपके state of mind कैसी है, आपकी physical being कैसी है, how good emotionally you are feeling. आपको अभी सब अपने, अगर हम देखते हैं अपने आप को, तो we will be able to understand कि हम लोगों को कैसा लग रहा है. So if we are absolutely perfect, जब हम सुबह उठते हैं, we feel so energetic. Wow, new day today. I have so much to do. And we're so happy about it. So obviously, we are in a healthy state of life. And लगता है, oh shit, sorry, that's the wrong word to use. Oh God, I have to go get up again. वापस मंडे आ गया, वापस मुझे ऑफिस जाना है, वापस खाना बनाना है, वापस बच्चों को अटेंड करना है. I'm not in a good state of health. Okay, please continue. Magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each uh, it- Italicized. italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you're grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. Yes, please hold now. Now we will do the health meditation. Okay. Okay. So I am stopping to share the screen. अभी अपने सब जन अपने अपने स्क्रीन वीडियोस ऑन कर लेंगे प्लीज. Everybody, please switch on your videos.
शांति से बैठ जाएं। अगर बेड पे बैठे हैं आलती पालती मार के बैठ जाएंगे, चेयर पे बैठे हैं तो पाँव अच्छे से नीचे करके बैठेंगे, आंखें बंद, हाथ को ध्यान मुद्रा में रख लीजिए। आज हम अपनी हेल्थ के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, सभी बॉडी पार्ट्स के लिए भगवान को थैंक यू बोलेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड, टेक अ डीप ब्रेथ आउट। एक लंबी सांस अंदर, पेट फूलना चाहिए। एक लंबी सांस बाहर, एक लंबी सांस अंदर, एक लंबी सांस बाहर। अब हम एकदम रिलैक्स हो गए हैं, मन तन सब शांत हो गया है। अब अपना ध्यान अपने पाँव की तरफ लेके जाइए। दोनों पाँव, इतने सुंदर पाँव, मेरे पाँव के सोल्स, टोज, काव्स, नीज, थाइज सबको अनुभव करिए। सोचिए आप अपने पाँव से क्या क्या कर सकते हैं। मेरे पाँव जो मुझे दिन भर सपोर्ट करते हैं, मेरी दिन भर बैलेंस बनाए रखते हैं। मैं खड़ी हो सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, जॉगिंग कर सकती हूँ, भाग सकती हूँ। अपने पाँव से मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं सीढ़ियां उतर चढ़ सकती हूँ, जहां मन चाहे मैं जा सकती हूँ। राइट, मैं जिम में जा सकती हूँ, मैं अपने आप बाथरूम जा सकती हूँ, मैं खाना बनाने जा सकती हूँ, मैं शॉपिंग जा सकती हूँ, मैं रेस्टोरेंट्स घूमने जा सकती हूँ, मैं मेरे बच्चों के साथ भाग दौड़ खेल सकती हूँ, वेकेशंस पे जा सकती हूँ, माउंटेन्स ट्रेकिंग कर सकती हूँ, स्कीइंग कर सकती हूँ, बीच पे सैंड पे चल सकती हूँ। कैन यू फील द सैंड बीनीथ योर फीट? हाँ, कैन यू फील द सैंड बीनीथ योर फीट? वो स्नो पे चलते हैं तो वो ठंडा ठंडा जो महसूस होता है, सब कुछ किस लिए? क्योंकि हम पाँव के साथ कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने तो कभी अपने पाँव को थैंक यू नहीं बोला, कभी नहीं बोला कि आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो, दिन भर मेरा वजन उठाते हो। थैंक यू माय लेग्स, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। अब अपना ध्यान अपने हाथों की तरफ लेके जाइए। These are the biggest tools of our life. हम सारा काम अपने हाथों से करते हैं। सुबह उठते हैं तब से रात को सोते हैं तब तक सारा काम मेरे हाथ ही तो मेरे लिए करते हैं। मैं खाना खा सकती हूँ, पानी पी सकती हूँ, लिख सकती हूँ, कितनी छोटी छोटी चीजें पकड़ सकती हूँ, उठा सकती हूँ, रख सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, ऑफिस का काम कर सकती हूँ, कंप्यूटर ऑपरेट कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को हग कर सकती हूँ, प्यार कर सकती हूँ, उनको खाना खिला सकती हूँ। कितना कुछ मैं अपने हाथों से कर सकती हूँ। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, डंबल्स उठा सकती हूँ, आसन कर सकती हूँ, कितना कुछ, लेकिन कभी थैंक यू तो बोला ही नहीं अपने हाथों को। आज मौका मिला है तो आज हम जरूर थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू मेरे हाथ, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। अब अपना ध्यान अपने पांचों सेंसेस की तरफ लेके जाइए। मेरे आंख,
मेरी आंख जिनसे मैं ये रंग बिरंगी दुनिया देख सकती हूँ ना, चारों तरफ हरियाली, नीला आकाश, आकाश में पंछी उड़ते हुए, हाँ, पेड़ पौधे, सब कुछ देख सकती हूँ। बच्चों के चेहरों पे हंसी देख सकती हूँ, माँ बाप के चेहरे पे प्यार स्नेह देख सकती हूँ। मैं बुक पढ़ सकती हूँ, अपनी फेवरेट मूवीज देख सकती हूँ, इतना कुछ देख सकती हूँ आंखों से। 1 घंटा, एक दिन भी नहीं, अगर 1 घंटा अपने आंखों पे पट्टी बांध लेंगे ना, तब रियलाइज करेंगे कि हम अपने आंखों से कितना कुछ कर सकते हैं। Thank you, my eyes. Thank you for showing me this beautiful, beautiful world all around me. Thank you. Thank you, my ears. मेरे कान, मेरे 2 कान जिनसे मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। सुन सकती हूँ ना, चिड़ियों का चहचहाना सुन सकती हूँ, बारिश की बूंदों की आवाज सुन सकती हूँ, एरोप्लेन आकाश में उड़ता है उसकी भी आवाज सुन सकती हूँ, बादल गरजते हैं उनको सुन सकती हूँ, बच्चों का चिल्लाना चहकना सब कुछ सुन सकती हूँ, अपने फेवरेट गाने सुन सकती हूँ, आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, कितना कुछ सुन सकते हैं हम अपने कानों से। लेकिन कभी तो थैंक यू नहीं बोला। थैंक यू माय इयर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू टू माय सेंस ऑफ स्मेल। वाह, इनसे तो हम कितना कुछ स्मेल कर सकते हैं। परफ्यूम्स, फ्लावर्स, दोस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स जिनको हम रोज की खुशबू कितनी सुंदर होती है ना, कितना अच्छा लगता है उसको स्मेल करते हैं तो। जब खाना पक रहा होता है और फेवरेट डिशेस, उनकी खुशबू, बारिश होती है तो मिट्टी की, गीली मिट्टी की वो सौंधी खुशबू स्मेल कर सकते हैं, कितना अच्छा लगता है। बच्चों को जब पाउडर लगाते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज को, वो पाउडर की खुशबू, वो इनोसेंस, वो सब कुछ हम स्मेल कर सकते हैं। Thank you, my nose. Thank you to my sense of smell. Thank you so much. Thank you. Thank you to my sense of taste. I'm sorry. हम जो भी कुछ खाते हैं, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, सब कुछ, पेस्ट्रीज, हम सब कुछ टेस्ट करते। कैसे पता चलता है मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कड़वा है? सब कुछ तो हमको हमारे सेंस ऑफ टेस्ट से ही पता चलता है ना। एंड हम जो भी खाते हैं वो हम उसी से एंजॉय करते हैं। हम पिज्जा खाते हैं, हम पुचका, आवर फेवरेट पुचका, मूढ़ी, कुछ भी, वाव, कितना अच्छा लगता है खाने में। अगर सर्दी हो जाती है ना, तो वो सेंस ऑफ टेस्ट जब चला जाता है, लगता है कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता, कोई चीज में तो टेस्ट ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर माई टंग, फॉर माई सेंस ऑफ टेस्ट। थैंक यू so much for helping me enjoy whatever I eat. Thank you. Thank you for my sense of touch. गरम, ठंडा, हार्ड, सॉफ्ट, टेक्सचर्स, रफ, स्मूथ, सब कुछ महसूस कर सकते हैं हम किसी को छूते हैं तो एक दूसरे का टच महसूस कर सकते हैं, बच्चों को हग करते हैं जब, अपने लव्ड वंस को प्यार करते हैं जब, तब वो जो फीलिंग आती है, वो जो इतना अच्छा लगता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑफ टच। हम कहीं बैठते हैं, हार्ड है, सॉफ्ट है, सब कुछ हमको पता चलता है, ऑल बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑफ टच। हम दुनिया महसूस कर सकते हैं, अपने सारे सेंसेस से हम दुनिया महसूस कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल माय सेंसेस फॉर
helping me understand, helping me enjoy the world so much. Thank you so much. और हम ये सब कुछ कैसे एंजॉय करते हैं? कौन हमको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए? कौन हमको पूरा टाइम दुनिया को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, सब कुछ हमको समझ में आता है किसके सहारे? बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन which is working 24/7 to help us understand everything that is going on around us. हमारे बॉडी फंक्शंस अच्छे से फंक्शन करते हैं, हमारा माइंड, हम क्रिएटिव बनते हैं, हम पेंटिंग बनाते हैं, हम म्यूजिक बनाते हैं. राइट ब्रदर्स ने अपनी एरोप्लेन्स बनाई. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल invented the telephone. सब कुछ all because of the power of the brain. तो हमारा brain is the biggest computer that has ever been seen. Thank you so much, my brain. Thank you so much for helping me so much. Thank you. Thank you to all my body cells, each and every body cell which is working day and night. I have never ever taken the opportunity to thank you. I take this opportunity now. Thank you so much. हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थैंक यू बोल रहे हैं अभी, क्योंकि हम जो भी खाते हैं, अच्छा भी खाते हैं और हम जंक भी खाते हैं, लेकिन हम तो एंजॉय करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. सब कुछ डाइजेस्ट करते हैं और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को देते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, क्लीन रखते हैं. थैंक यू टू आवर लंग्स. थैंक यू टू आवर लिवर, जो सारा दिन काम करते हैं, हमारा बॉडी को एकदम हेल्दी रखते हैं. थैंक यू टू आवर बोन्स. थैंक यू so much हमको पोस्चर देने के लिए, हमको स्ट्रक्चर देने के लिए. सोचिए अगर बोन्स नहीं होंगे तो हम कैसे लुत्फुत टाइप के दिखेंगे ना. बोन्स के कारण हम इरेक्ट खड़े रह सकते हैं, है ना. थैंक यू टू ईच एंड एवरी बोन ऑफ आवर बॉडी. थैंक यू so much. And last but not the least, this is the most important organ of our body, our heart. This was the first organ which was developed जब हम अपने माँ की कोख में आए. धक 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 सारा दिन 24/7 365 days पंप करता है ब्लड हमको जीवित रखने के लिए. हर ऑर्गन में, हर सेल में ब्लड पहुंचाता है. थैंक यू सो मच माय हार्ट. Thank you. I can never ever repay whatever you have done for me and what you are doing for me. Thank you so much. Thank you. I take this opportunity to thank each cell of my body and each organ of my body for being healthy and for keeping me alive. Thank you, thank you, thank you. अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए. Thank you everyone. Yes. Yeah. Should I start? Yes, I will. I'm just sharing the screen. Wait. Yes. I will just mute everybody. Mute all. Now you can unmute yourself, Shuchi Bhabhi, and we will start from next. Take a piece of paper or card. You please unmute yourself, Shuchi Bhabhi. Yes, next take a piece of paper.
Next, take a piece of paper or a card and write on it in big, bold letters. The gift of health is keeping me alive. Yes, I would like all of you to take a slightly thick paper, not a very thin paper जिसमें हम लोग generally notebooks वाला paper जो होता है ना एकदम पतला, वो मत लीजिए, थोड़ा मोटा लीजिए पेपर और उसमें हम लोगों को लिखना है एकदम bold letters में. I will show you. ऐसे. The gift of health is keeping me alive. Huh? Please continue. Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place, your car or truck, where you will see it often. If you're at home, most of the time you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you've written often. यस या हम लोगों को ये कार्ड को ऐसी जगह रखना है जहां ये बहुत विजिबल हो. आप अपने डेस्क के ऊपर रख सकते हैं, कांच के नीचे, ग्लास के नीचे रख सकते हैं, बेड साइड टेबल में ग्लास है उसके नीचे रख सकते हैं, वॉशरूम में मिरर के ऊपर लगा सकते हैं उसको, अपने वार्डरोब में अगर आप वो वार्डरोब बार बार खोलते हैं तो वहां पे उसके ऊपर लगा सकते हैं आप, जहां पे ये आपको बार बार दिखेगा. Okay, so as many times as you see it, you have to be grateful for this beautiful gift that nature has given us. All right, please continue. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Yes, आप लोग जब भी वो देखेंगे, जितनी बार वो आपका कार्ड देखेंगे उतनी बार आपको मन में यही बोलना है एकदम धीरे धीरे. Sorry, the gift of health is keeping me alive. Thank you Bhagwan ji, thank you so much. Okay, please continue. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get Shishi bhabhi, we can't hear you. I think better उनके with increasing education. आपके नेटवर्क में कुछ चैलेंज आ रहा है भाभी, या कि एवरीबडी कैन हियर हर, तो शायद मेरे में कुछ चैलेंज आ रहा है क्या? No, not very clear. It's not very clear. I can hear some music along with her reading. Oh, okay. Okay, So I will read it. again, I will read it. okay, yeah, you read Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we've never seen before. क्या बोल रही है रोंडा बर्न यहाँ पे हमको कि ग्रैटिट्यूड देना हेल्थ के लिए इसलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रेजेंट हेल्थ तो अच्छी बनाएंगे, बट वी विल कंटिन्यू टू हैव गुड हेल्थ, कंटिन्यू टू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ इन आवर लाइफ. अगर हम ये जो हमारे जो कन्वेंशनल जो रेगुलर मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स जो हम अपने हेल्थ के लिए लेते हैं, उसके साथ अगर हम ग्रैटिट्यूड लेना शुरू कर देते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं एवरी टाइम, देन हम हेल्थ की एरिया में जो मिरेकल्स देख सकते हैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, एंड आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस चैप्टर. We will do magic practice number 4, magical health. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list and say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. ये तो हम सब कर ही रहे हैं. Very religiously we are all doing it.
Yes. Number 2, on a piece of paper or card, write the words, the gift of health is keeping me alive. हिंदी में हम उसको बोलेंगे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है. Number 3, place the piece of paper with your written words where you know you will see it often. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Yes, अब हम लोगों को कार्ड बनाना है, उसके ऊपर लिखना है the gift of health is keeping me alive. फिर हमको उसको कोई ऐसी जगह रखना है जहां हम उसको बहुत फ्रीक्वेंटली और बार बार देख सकें. और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, this you have to keep forever. आप उसको ऐसी जगह ही रखिए. इफ यू वांट, यू नो, आप उस पे सेलोफिन लगा के रख सकते हैं, उसको आप अच्छे से रख सकते हैं कि उसको वो डैमेज ना हो और बहुत अच्छे से रहे. आप उसको ऐसी जगह रखिए जहां आप उसको बार बार देखेंगे. जितनी बार देखेंगे और जितनी बार ये वर्ड्स बोलेंगे आप, उतनी बार आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं एंड you are improving your health. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happens during the day. Okay. Now unmute yourselves, everybody. Please unmute yourselves. सबको ये चैप्टर समझ में आया? कोई क्वेरी किसी को पूछना है? Anybody wants to ask anything? ये अच्छा, tell me one thing. हम लोग day 1 से बोल रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलो. कल भी हमने बोला कि 3 फोटोज लो. Nobody asked me why are we always emphasizing on the number 3? किसी ने पूछा ही नहीं मुझको. किसी को शायद जिज्ञासा ही नहीं हुई उस बारे में, है ना? क्लिक किया कि नंबर 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है. हाँ, बट किस लिए हम लोग क्यों बोल रहे हैं? Because 3 is the symbol of creation. So Brahma, Vishnu, Mahesh, mother, father and child. 3 is the number of creation. जहाँ हम कोई भी चीज 3 बार करते हैं ना, हम लोग क्या अपने लोगों में क्या बोलते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा. No, but then that is very wrong. हम लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए because 3 is the symbol of creation. जो भी चीज हम 3 बार बोलते हैं, कोई भी affirmations भी अगर हम जैसे दिन में 3 affirmations करते हैं तो वो ना क्रिएट होता है, एनर्जी बहुत अच्छी जाती है यूनिवर्स. Any questions? सबके ड्रीम विश लिस्ट बन रही है, ड्रीम लिस्ट बन रही है सबकी? प्लीज. हाँ, यस प्रीति. I just wanted to ask Shalini, जो ये आज अपने ये लिखने का है कि the gift of health will keeping us alive. I am doing this class. Is it applicable only to me? और जैसे अब मैं चाहती हूँ कि ये मैं मम्मी की अलमारी में रख दूँ लिख के. देखिए, आप रख सकते हैं, नो इशू, लेकिन आप अपने सामने तो आप जरूर रखिए. हाँ, मैं मेरे सामने रखूंगी. Like she has some health issues, तो मेरे को ऐसा लगता है कि we will come to that later also, but yes, you can make another card and keep it in front of her also. आप उनको बोल सकते हो ये बार-बार फीलिंग के साथ बोलने के लिए. तो डेफिनेटली देखिए, as grateful you are तो अफेक्ट तो करेगा ही, डेफिनेटली अफेक्ट करेगा. बट इसको बोलते हैं कि बिफोर you can help others, you have to help yourself. और अभी ना हम अपनी लाइफ में, अपने एरियाज और लाइफ की सारी एरियाज में हम अपने आप को पहले हेल्प करेंगे, so that later on we can help others. Okay. You can try, you can keep it in front of her. There is no harm because
देयर इज नो एंड टू ग्रैटिट्यूड। और वो कभी कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम आज शुरू कर रहे हैं कि हम 4 दिन बाद शुरू कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। She can look at this, she can say this, repeat this as many times as she wants. Because आप कहीं पे भी हो, आप अगर बेसन के ऊपर आप रखते हो तो जितने जन देख रहे हैं उसको उतने सब जन बोल सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं सिर्फ आप ही को बोलना है। हाँ, that is what ना, because हाँ, उनका थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि यार if this works then why not try it for some, like वैसे मेरा था। बिल्कुल, why not, definitely. That is what. Any other queries? Thank you. Most welcome. Any other queries? We still have time. अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हम बोल सकते हैं। अच्छा, I have an extra assignment today for all of you. Now, since we are doing this chapter on health, there is an extra assignment. Today we will take 3 body parts. कोई भी 3 organ, कोई भी 3 system, you can take more than 3 also, but at least 3. Okay, at least 3 body parts, 3 body systems, कोई भी हम ले सकते हैं। And उनके लिए हमको 10 gratitudes लिखना है। This is not वो सुबह वाला जो हम लोग लिख रहे हैं वो नहीं, this is extra। उनके लिए हम लोगों को 10 gratitudes लिखना है, 10 blessings लिखना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, जैसे कि हम रोज सुबह बोलते हैं वैसे। ठीक है? Now this you can do any time of the day, उसमें कोई बात नहीं है, but this should be done before the class tomorrow. All right? So this is an extra assignment, extra practice for all of you. Okay? मतलब सब बोलना है और we have to write it down also. You have to write it down because खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। Okay, लिख के करनी है प्रैक्टिस। सारी प्रैक्टिसेस लिख के करनी है, जहां सिर्फ जैसे बोला जाएगा बुक में, जो अगर बोल के करना है तो वो हम बोल के करेंगे, बट दिस प्रैक्टिस यू हैव टू राइट। ओके, एंड सबके कार्ड्स कल तक रेडी हो जाने चाहिए। आई वांट टू सी एवरीबॉडीज कार्ड्स टुमारो। ठीक है? Now we will do the affirmations for health today. Okay, please close your eyes. Just join your hands. We will do our affirmations today. My body is powerful and knows how to heal itself. My body is powerful and knows how to heal itself. My positive thoughts and actions renew my body and mind today. My positive thoughts and actions renew my body and mind today. I am relaxed, centered, and refreshed in my present state of mind. I am centered, relaxed, and refreshed in my present state of mind. Thank you, thank you, thank you, God. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I want to strive. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you. I hope the chapter is clear to everybody. अगर किसी को कुछ पूछना हो ना तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और आप लोग का जैसे जैसे प्रैक्टिस ओवर होता है ना, ग्रुप में लिखना चाहिए। ग्रुप में लिखने से ना लोगों को मोटिवेशन मिलती है और खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके, so I think we
can log off today. Thank you. Thank you, Shuchi Bhabi, for Thank leading you. so Bye. nicely for us. Very nice. Thank you. Thank you. Bye bye, everyone.